Bismillahirrahmanirrahim. So, we discuss how to enhance the photocatalytic activity of the photocatalyst. As we have studied that irradiation of the catalyst when it is irradiated, it produced electron is excited from the valence band to conduction band, and it results in positive hole in the valence band and photo excited electron in the conduction band. These positive hole and electron, this is called exciton. This exciton, the pair of hole and electron, this hole and electron pair is called exciton. This exciton may recombine. Positive hole and electron may recombine. The absorbed energy is released in the form of heat. So it is deactivated. And further, in another option, this positive hole react further, electron react further and produce a series of reactions, and ultimately resulting in the photochemical reactions. So for enhanced catalytic activity, for enhanced photocatalytic activity, the lifetime of exciton is desirable. यानी इन्होंने इसी फॉर्म में रिकम्बिनेशन से इसको रोकना होगा. The lifetime, extend lifetime of exciton is desirable. इनकी लाइफ टाइम को इंक्रीज करना होगा. लाइफ टाइम कैन बी इंक्रीज्ड by increasing the separation between valence band and conduction band. Life time of exciton can be increased by increasing the separations between valence band and conduction band. लेकिन ये भी desirable नहीं है. But this is also undesirable because this leads to inefficient photocatalytic activity. But this increase separation between valence band and conduction band. Increased separations between valence band and conduction band leads to inefficient photocatalytic activity. Inefficient photocatalyst. So therefore this is not desirable. Not desirable. तो दूसरा ऑप्शन क्या है? So alternately, efforts are made to enhance the lifetime of exciton by structural modifications. Hence, efforts are made to enhance
the lifetime of exciton by structural modifications. In semiconductor, in the structure of the semiconductor, semiconductor के structure में changes करते हैं. So one of the efforts is the formation of a heterojunction. One effort is the formations of heterojunctions between two metal oxides. Between two metal oxides, or the doping of the semiconductor with other metal and metal oxide. Doping of semiconductor with metal or metal oxides. So that is the formation of heterojunction. This formation of heterojunction enhances the photocatalytic activity by increasing the lifetime of the exciton. This formation of heterojunction increases the photocatalytic activity by decreasing the rate of recombination of the exciton. Formations of heterojunctions between two metal oxides results in increased lifetime of exciton. और कैसे इंक्रीज करता है? It decreases the rate of recombinations of hole and electron. So its rate of recombination is decreased, so therefore the photocatalytic activity is increased. The most efficient heterojunction is the formation of p-n heterojunctions. Efficient heterojunctions is the p-n heterojunctions. It is formed by the combination of a p-type semiconductor with a n-type semiconductor. Formed by combinations of a p-type semiconductor with a n-type semiconductor. अब ये p टाइप और n टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? देखिए, सेमीकंडक्टर दो तरह के हो सकते हैं. Semiconductors can be of two types. One which is in the pure form. Pure semiconductor. उसमें कोई
थर्ड एलिमेंट नहीं है, सिर्फ एक मेटल है और एक ऑक्सीजन है, नो थर्ड एलिमेंट, and it consists of only one metal and oxygen, consist of one metal and oxygen, that is pure. So such type of semiconductor they are called as intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor. The semiconductor which is in the pure form, it is free from any other extra metal. So such type of semiconductor are intrinsic. और दूसरा है extrinsic. Semiconductor. ये क्या है? The semiconductor doped with trace element during its synthesis. The semiconductor doped with trace element during its synthesis. यानी इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक या दो एटम रिप्लेस करते हैं with other elements. So they are called extrinsic semiconductor. They are doped with trace element. अब ये trace element ये दो तरह के हो सकते हैं, यानी इसमें से क्रिस्टल स्ट्रक्चर में से एक एटम की जगह पर एक यूनिट सेल है, and crystalline substances है, so it composed of it is a crystalline, it composed of a unit, they have a unit cell, और unit cell में atoms होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपल ले ले, स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसमें ये कॉर्नर पर एटम्स होते हैं ना, तो it consists of the arrangement of atoms results in a regular arrangement in a regular repetition, a pattern that is called a unit cell. अब इस यूनिट सेल में एक एटम को रिप्लेस करते हैं किसी और से, बाकी सारे एक जैसे हैं, एक मेटल्स के हैं, लेकिन एक इसमें एक्स्ट्रा आ गया है. So such type of semiconductor they are called extrinsic semiconductor. अब ये जो डोपेंट है ये दो तरह के हो सकते हैं. एक है कि इलेक्ट्रॉन डोनर डोपेंट हो, इलेक्ट्रॉन डोनर डोपेंट. So an atom when incorporated in crystal, इस किस्म के जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो, so this case में an atoms when incorporated in crystal lattice releases a mobile conduction electron into the crystal lattice. Releases. तो यानी ये डोपेंट दो तरह के हो सकते हैं. एक तो ये है कि इलेक्ट्रॉन डोपेंट डोनर हो. So an atom when incorporated in the crystal lattice releases an electron into the crystal lattice. So semiconductor doped with donor atom is called N-type semiconductor.
So such type of semiconductor are called N-type. The semiconductor is called N-type. So N-type क्या है? Semiconductor doped with donor atom. Semiconductor doped with donor atoms is called N-type. N-type semiconductor. इसी तरह दूसरा क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि सेमीकंडक्टर को डॉप करे एक ऐसे एटम के साथ जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो, एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डोपेंट, ये क्या होंगे? इट इज an atom when incorporated, an atom when incorporated in crystal lattice or unit cell, तो ये क्या करेगा? Accepts electron from the lattice. An atom when incorporated in the crystal lattice accept electrons from crystal lattice. So such type of, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? This results a vacancy called a hole. यानी ये एटम्स इस लेटिस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देता है, या तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो वो हो जाएगा एन टाइप, और अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो देयर विल बी पॉजिटिव होल. ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, सो द एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स from lattice, so there will be a hole. This results a vacancy called a hole. This results a vacancy called hole which move through the crystal lattice. And it moves through crystal lattice like a positive charge. इस केस में इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, so that electron move through the crystal like a free electron. तो ये हो जाएगा p type semiconductor. p type semiconductor. यानी सेमीकंडक्टर हमारे पास या तो प्योर फॉर्म में होंगे या डॉप्ड फॉर्म में होंगे. अब जब डॉप्ड फॉर्म में होंगे तो वो भी दो तरह के हैं, एक है पी टाइप और दूसरा है एन टाइप. एन टाइप में कौन सा है कि इसमें ऐसा एटम हो जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो. फॉर एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर है, इसमें ये हमारे पास वैलेंस बैंड है और एक कंडक्शन बैंड है VB एंड CB. तो अगर ये है N टाइप है तो N टाइप में ऐसा एटम इनकॉर्पोरेट करते हैं दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो उसमें नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे. तो यहाँ पर ये फॉर एग्जाम्पल 3 पॉजिटिव है, अंडर इरेडिएशन H है, होल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा होंगे. 5 है, एक्स्ट्रा हो गया. तो ये इलेक्ट्रॉन, ये एक्स्ट्रा कहां से आ गए हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर एटम से.
इसी तरह जो पी टाइप है इसमें होल ज्यादा होंगे। इसमें ऐसे एटम्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं which accept electron from the crystal। so रिजल्ट क्या होगा कि positive holes are created in the lattice। so this is p type। so when a heterojunction, when two semiconductors are combined, when n type and p type semiconductors are combined, a heterojunction is formed. Heterojunction is formed and it is called p-n heterojunctions। so when these p and n type metal oxides are in contact, so when p type and n type metal oxides are in contact, क्या होगा? then the electron, number first, electron transfer from n type to p type, electron transfer from n type to p type semiconductor, और positive hole flows from p type to n type, p type to n type semiconductor, hence they are separated from one another, hence the hole and electron are separated, so the recombination rate is increased, recombination rate is decreased, hence जब recombine नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? they take part in series of reactions, other reaction होंगे, ultimately resulting in OH radical, hence the photocatalytic activity is increased, photocatalytic activity is increased। यानी फोटोकैटालिटिक एक्टिविटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बाय डिक्रीजिंग द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव होल। यानी एक्स को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो एक हमारे पास पी टाइप है, फॉर एग्जाम्पल ये पी टाइप है, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड है। तो पी टाइप में क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन कम होंगे, क्योंकि इसमें इस सेमीकंडक्टर को ऐसे एटम से ड्रॉप करते हैं विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्रिस्टल।
सो इट रिजल्ट्स इन अ पॉजिटिव होल। जब इसको इरेडिएट करते हैं तो उसमें भी पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाते हैं। तो इस तरह अंडर इरेडिएशन द नंबर ऑफ पॉजिटिव होल विल बी हायर इन कंपैरिजन टू फोटो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरह एन टाइप में एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, इसको अब एक ऐसे एटम से ड्रॉप करते हैं विच रिलीज इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और पॉजिटिव होल कम होंगे। सो व्हेन दे आर कंबाइंड द p n hetero junctions is formed when p-type and n-type semiconductors are in contact. The electron moves from n-type to p-type. ये इलेक्ट्रॉन यानी इसमें तो ये जब एक्साइट हो जाते हैं तो एक पॉसिबिलिटी तो है ये कि ये रिकम्बाइन हो जाए, एक तो ये है ना, रिकम्बाइन हो जाते हैं। तो अब अगर इस रिकम्बिनेशन को हमने रोकना है, यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन तो तब होगा जब इस रिकम्बिनेशन को रोक देते हैं। तो ये कब होगा, जब इनके दरमियान हम इस सेपरेशन को इंक्रीज करते हैं। तो सेपरेशन के इंक्रीज करने का एक तरीका ये है कि इस बैंड गैप को इंक्रीज करते हैं, लेकिन उसकी वजह से फिर एक्साइटेशन नहीं होगी, तो इसलिए वो अनडिजायरेबल है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चर में हम स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफिकेशन हमने क्या की है कि एक तो हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर बना दिया है, यानी एक ऐसे एटम से इसको ड्रॉप करते हैं विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, सो इट रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड पॉजिटिव होल। और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर बना दिया है कि इसको एक ऐसा एटम से ड्रॉप करते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, सो दैट इज एन टाइप। और फिर इन दोनों एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन करते हैं। तो इसमें क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज टू द पी टाइप और पॉजिटिव होल्स फ्लो टू द एन टाइप। तो अब जब इलेक्ट्रॉन यहां पर चले जाएंगे तो अब इस पॉजिटिव होल के साथ रिकम्बिनेशन के लिए तो कोई नहीं है ना, फिर ये रिकम्बिनेशन नहीं होगा। इस तरह ये रिकम्बिनेशन जब पॉजिटिव होल इधर आएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन होने के लिए पॉजिटिव होल नहीं होंगे, तो लिहाजा ये स्टेबल हो गए हैं। जब ये स्टेबल होंगे तो इस इलेक्ट्रॉन ने फर्दर फिर रिएक्ट करना है ऑक्सीजन के साथ और इससे OH रेडिकल्स बन जाएंगे। इस तरह इस हाइड्रोजन ये जो पॉजिटिव होल है इसको रिकम्बिनेशन के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो देयरफॉर दे आर स्टेबल। तो ये फिर फर्दर रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ एंड इट रिजल्ट्स इन हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स, and these hydroxyl radicals are stable species and they take part in further photochemical reactions. So this is a simplest type of the mechanism of the photochemical reactions, that how to increase the photocatalytic activity of the photocatalyst. And a photocatalyst क्या है? Photocatalysts are the heterogeneous catalyst which changes the rate of reaction under irradiation of light. तो irradiation से क्या होगा? When a catalyst is irradiated, electrons are excited from the valence band and semiconductors they are used as a photocatalyst. These semiconductors have a special types of characteristics, unique characteristics. और वो क्या है कि there is a wide region. These semiconductors have a number of filled orbitals and a number of vacant orbitals. The distance, the separation between the top of the filled orbital and bottom of the unfilled orbital, vacant orbital, that is called band gap. This band gap is characteristics of the semiconductor. हर एक के लिए different है। तो जब इस सेमीकंडक्टर को इरेडिएट करते हैं विद अ फोटोन, फोटोन कैसा होगा? जिसकी एनर्जी कम से कम बैंड गैप के एनर्जी के बराबर होगा।
या इससे ज़्यादा होगा। अगर कम है तो फिर तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कर सकेगा। So when a photocatalyst is irradiated with a photon having an energy of equal to or greater than band gap, electron is excited from the valence band to the conduction band. As a result of this irradiation, a positive hole is created in the valence band and an electron is generated in the conduction band. So this electron hole pair, this is called exciton. अब ये एक्सीटॉन, ये होल और इलेक्ट्रॉन वापस रिकम्बाइन हो सकते हैं। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये फर्दर केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ने रिएक्ट करना है ऑक्सीजन से सुपर ऑक्साइड एनाइन बन जाएगा और फिर वो वाटर के साथ रिएक्ट करके उससे हाइड्रोक्साइड रेडिकल बन जाएंगे। इस तरह पॉजिटिव होल इसने रिएक्ट करना है वाटर के साथ, मॉइस्चर के साथ, इससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा और अल्टीमेटली इससे OH रेडिकल बन जाएंगे। तो दो ऑप्शन है, या तो ये रिकम्बाइन होंगे या ये फर्दर सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं और अल्टीमेटली फोटोकेमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले लेता है। तो अब अगर एक्टिव फोटोकैटालिस्ट होगा तो उस एक्टिव फोटोकैटालिस्ट में क्या है कि ये सीरीज रिएक्शन होनी चाहिए, ये रिकम्बिनेशन नहीं होने चाहिए। तो अब अगर इस रिकम्बिनेशन को हमने रोकना है, यानी एनहांस्ड फोटोकैटालिटिक एक्टिविटी के लिए इस रिकम्बिनेशन को रोकना पड़ेगा, यानी ये रिकम्बिनेशन अनडिजायरेबल है। इसको कैसे रोक सकते हैं? दो तरीकों से। एक तो ये है कि बैंड गैप को बढ़ा दिया जाए, फिर ये आसानी से आपस में रिकम्बाइन नहीं होंगे। लेकिन अगर बैंड गैप को बढ़ा देते हैं तो फिर इसको एक्साइट करना भी मुश्किल हो जाएगा। So therefore the separation between conduction band and valence band, this is undesirable। यानी desirable तो ये है कि ये कम से कम हो जाए। यानी एक्टिव फोटोकैटालिस्ट में क्या होगा कि ये बैंड कम से कम हो और रिकम्बिनेशन भी कम से कम हो। जब ये बैंड गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट हो जाएंगे, विजिबल लाइट से भी हम कर सकेंगे। फिर अगर सेपरेशन ज्यादा है फिर तो एनर्जेटिक फोटोन चाहिए होंगे, तो एक यानी इस बैंड गैप को कम करना पड़ेगा। और दूसरी, इस जब बैंड गैप को कम करते हैं फिर रिकम्बिनेशन बढ़ जाती है, तो फिर इस रिकम्बिनेशन की वजह से फोटोकैटालिटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। हमारे पास दो ऑप्शन है ना, कि एक तो बैंड गैप को चेंज करना है और बेस रेट ऑफ रिकम्बिनेशन को चेंज करना है। अगर बैंड गैप को कम करते हैं तो फिर एक्साइटेशन तो आसान हो जाएगी लेकिन रिकम्बिनेशन रेट बढ़ जाती है। इस तरह अगर बैंड गैप को बढ़ा देते हैं तो फिर रेट ऑफ रिकम्बिनेशन कम हो जाएगा लेकिन फिर एक्साइटेशन मुश्किल हो जाती है, एनर्जेटिक फोटॉन चाहिए होंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस। स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे कि ये बैंड गैप कम हो जाएगा या कम से कम ऐसा ही रहेगा लेकिन रेट ऑफ रिकम्बिनेशन वो डिक्रीज हो जाती है। तो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन में डॉपिंग है या फॉर्मेशन ऑफ पी एन हेटेरोजंक्शन है। डॉपिंग, ऑन द बेसिस ऑफ डॉपिंग the semiconductors can be classified into two types। पहले तो ये है कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है। इंट्रिंसिक वो सेमीकंडक्टर है जिसमें सिर्फ एक मेटल और एक ऑक्सीजन हो, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो है जिसमें से दो किस्म के मेटल ऑक्साइड पाए जाते हैं। यानी the semiconductor doped with trace of other metal, that is called एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये डॉपेंट जिसको हम डॉप करते हैं, जो एटम हम इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो दो तरह के हो सकते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो ऐसे डॉपेंट, ऐसे सेमीकंडक्टर को फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि वो एटम क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया जाता है, कर देता है, पॉजिटिव होल्ड क्रिएट किए जाते हैं एज जस्ट लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे सेमीकंडक्टर को पी टाइप कहते हैं।
और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर, वो ऐसे सेमीकंडक्टर है जब किसी ऐसे एटम के साथ डॉक करते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, इलेक्ट्रॉन डोनर हो, तो ये एटम पर क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, तो ऐसे सेमीकंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। तो अब इस पी टाइप और एन टाइप को जब हम कंबाइन करते हैं तो इससे बन जाएगा पी एन हेटेरो जंक्शन। तो इस केस में हेटेरो जंक्शन के दौरान व्हेन इट इज irradiated, so electron excites from the valence band to conduction band, then the electron from the n type flows to the conduction band of the p type, and positive hole flows from the p type to valence band of the n type. So they are separated from one another. जब सेपरेट हो जाते हैं तो फिर ये फर्दर केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे एंड हेंस द फोटोकैटालिटिक एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड। तो ये था फोटोकैटालिसिस के बारे में। कुछ लिटरेचर रेफरेंसेस पर आपको दे देते हैं, वो वहाँ पर यानी मैकेनिज्म्स वो डिस्कस भी कर लेंगे और फिर और मैकेनिज्म भी आपको बता देते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।